I would like to ask you a very basic economic question. Gold price determine कैसे होता है? इंडिया में कंज्यूमर्स लाइक साउथ इंडियन, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती डिफरेंट है, सबका डिफरेंट टेस्ट है। उनका ये मानना है कि वी आर ब्रिंगिंग इन 25 to 50 माइंड इन इट। स्काई गोल्ड इज अ माइंड। डेली चेंज होता है गोल्ड का प्राइस। आप किसी प्राइस पे बुलियन ले रहे हो, कल्याण या कोई भी और कॉर्पोरेट जिस टाइम पे प्लेस कर रहा है ऑर्डर, तब कोई और प्राइस होगा, और जब तक आप फाइनली इन्वेंट्री डिस्पैच करते हो तब कोई और प्राइस होगा। तो हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क ऑफ प्राइस वॉलेटिलिटी? एवरी ईयर गोल्ड गिव्स अ एवरेज रेट ऑफ 12%। आप 15-20 साल के हिस्ट्री में जाएंगे, बट दिस ईयर इट इज गिवन 30%। वी थिंक दैट आगे जाके डाइल्यूट होगा, 2 साल गोल्ड स्टेबल रहेगा। जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपको वर्किंग कैपिटल नीड्स भी और बढ़ती जाएगी, तो फिर कैसे आपका रिड्यूस होगा वर्किंग कैपिटल? पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम विद यू ऑफलोडिंग योर स्टेक। वुड यू लाइक टू एड्रेस दैट? They say when gold prices are rising, don't buy the gold, but buy the shovel instead. Gold is winning, and so is this company. From reporting triple-digit revenue growth numbers to onboarding marquee clients, this company is winning in every aspect. We have with us Mangesh Chauhan, MD and CFO at Sky Gold and Diamonds Limited, to discuss everything about the gold, where are the prices going, and how does he position the company to take advantage of this booming yet traditional market. Thank you for joining us today, sir. Thank you so much for calling to the interview. Yeah. Sir, we would like to start with your journey first. You started this company 20 to 25 years back, right? And उस time लोग usually traditional businesses start कर रहे थे, जैसे retail shop. तो how did you think about starting a B2B company? Yeah, again, we started this journey 20 years back. We are 3 brothers, 3 promoters started this business. Mahendra Chauhan about the manufacturing innovations of the product, Darshan Chauhan about the marketing and sales, and myself as a managing director, business expansion, acquisitions, finance and growth of the planning of the business. So we used to, in the college life, we used to sit with our fathers, and they had a FMCG product distribution business. So we used to sit there and we were just a delivering person for them. We used to deliver the product from the company to the retailer. So we were neither manufacturing, neither we were a retailer. So we told our father that we should have some interesting manufacturing or creation. We should know that we, I and Mahendra bhai very much fond of making something or creating something. So we told our father they help us to take a job in a jewelry manufacturing company, where we had done a job for 3 years, I and Mahendra bhai together. And at that company I got the opportunity to learn how product is manufactured, innovated. I got the opportunity to be in the finance department also. I got the opportunity to be in the marketing sales also, being a small company. So I got the opportunity in all this divisions. And then we started a startup company in 2005 with a small capital of 15 lakh rupees. We bought some Indian regional machineries. With a 300 square feet workshop, we started with 5-6 workers. And as a promoter, we also know how to melt the gold and make the gold. We also work to for some part of the gold. So we started a small startup, and again in 2008, my smaller brother Darshan Chauhan joined us after the graduation, and we 3 all made it private limited, and we accelerated our growth. We got some bank loans, and we added some machineries. We hired some good designer, and we started making new products and new developments. And with this product, we started showing to the corporates, large corporates of India, those who have 50 to 400 stores right now. Earlier they used to have 10 stores. Now they are having 200, 300 stores. So we developed the design for them, and we started onboarding them in 2010 to 12. And from there our journey starts, and we converted the distributor model of the business to corporate model. Okay. So right now we are our business mostly 50-60% comes from large corporate, mid corporate and small corporate, and 40% from the distributor model. Okay. So again we have reached this 3,500 turnover in last year, and at 450 kgs per month on an average we produce. So we are on an average producing 6 tons per year, which is 1% market share of India. It is very lesser, and there is very much scope to grow ahead. So like that we started our journey, all 3 brothers. Okay. So that's very inspiring. You have taken the company from 100 crore to 5,000 crore today, 5,000 market cap today in just 6-7 years. So sir, I would like to ask you a very basic economic question.
गोल्ड प्राइस डिटरमिन कैसे होता है? अगर मैं किसी से पूछूं तो लोगों के लिए बहुत इजी है कहना कि सप्लाई या डिमांड, बट एक्चुअली कैसे डिटरमिन होता है ये प्राइस? तो अगेन बेसिक आप बात करेंगे तो सप्लाई और डिमांड का कॉम्बिनेशन होता है, वो तो बेसिक है। लेकिन आप देखेंगे कि माइनिंग से कितना मेट्रिक टन्स गोल्ड आ रहा है। अगर 4,000 टन मेट्रिक टन ऑल ओवर वर्ल्ड से माइनिंग से आ रहा है, और कंज्यूमर जो इंडिया सब कंट्रीज़ की डिमांड होती है, प्लस सेंट्रल बैंक्स कितने बाय करते हैं और कंज्यूमर्स के पास कितना जाता है, तो ये एक डिमांड क्रिएट होती है सेंट्रल बैंक से भी और ऑल द वर्ल्ड की कंट्रीज से भी, जो पास ऑन होता है उनके कंज्यूमर्स को। तो मेजरली आप देखेंगे हमेशा डिमांड साइड ज़्यादा होता है और सप्लाई साइड माइनिंग से थोड़ा बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से गोल्ड का रेट हमेशा अप्रिशिएटिंग रहता है। एवरी ईयर गोल्ड गिव्स एवरेज रेट ऑफ 12%। आप 15-20 साल की हिस्ट्री में जाएंगे, बट दिस ईयर इट इज़ गिवन 30%। वी थिंक दैट आगे जाके डाइल्यूट होगा, 2 साल गोल्ड स्टेबल रहेगा। सो गोल्ड का डिमांड और सप्लाई और सेंट्रल बैंक्स की जो भी पॉलिसीज है, उनके इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहे हैं तो कस्टमर शिफ्ट देयर कैश टू गोल्ड बाइंग। सो जो भी बैंक्स के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, दे शिफ्ट देयर परचेसिंग इनटू गोल्ड। तो फंड बेस्ड भी बाय करते हैं सेंट्रल बैंक्स एंड द कंज्यूमर। तो इसको वर्ल्ड की करेंसी बोलते हैं। वर्ल्ड के एवरी कंट्री के कंज्यूमर इसको होल्ड करते हैं, वर्ल्ड की एवरी बैंक इसको होल्ड करती है और वर्ल्ड की एवरी गवर्नमेंट इसको होल्ड करती है। तो इट्स बेस्ड ऑन द माइनिंग्स आउटपुट एंड द डिमांड्स ऑफ सेंट्रल बैंक एंड द कंज्यूमर्स। ओके सर, सर आई वुड लाइक मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आई वांट टू नो एवरीथिंग। आप कहाँ से सोर्स करते हो, किसको बेचते हो, कैसे प्राइस डिटरमिन होता है, एवरीथिंग, कौन से आपके क्लाइंट्स हैं, सब कुछ। श्योर। तो हम लोग हम गोल्ड प्रिक्योर करते हैं बैंक से या लाइसेंस इंपोर्टर से, जो भी इंडिया में जो लाइसेंस इंपोर्टर है उनसे प्रिक्योर करते हैं। एंड वी प्रिक्योर द बुलियन फ्रॉम द बैंक्स एज वेल। इट कम्स टू द फैक्ट्री और प्लांट पे वो सारा मेल्ट होके उसका 22 कैरेट और 18 कैरेट दोनों हम कैरेटेस बनाते हैं एज पर कस्टमर ऑर्डर। उसको हमको 25 से 30 दिन लगता है बनाने में। एंड वी सेल इट टू द कस्टमर्स लाइक कॉर्पोरेट्स like Kalyan Jewelers, Malabar Gold, Joy Lucas, Senco Gold, Thangamile, Khazana Jewelry, Lalita Jewelry. All those who have 40 to 400 store are our client, like Carrot Lane. We already onboarded Aditya Birla. So we are in agreement phase with Reliance. So ये सब corporates के लिए हम लोग बनाते हैं as per their orders. We come up with 2000 designs per month. हम लोग 2000 डिज़ाइन पर मंथ बनाते हैं। So we come up with different design for different corporates. हमारी 150 पर्सन्स की टीम है, डिज़ाइनर टीम। एवरी 10-12 की टीम, डिज़ाइनर टीम एक बैच बनाते हैं डिज़ाइनर्स के। उसमें 3 सीनियर डिज़ाइनर होते हैं, 3 मिड डिज़ाइनर होते हैं, 3 न्यू डिज़ाइनर होते हैं। और हम एक डिज़ाइनर टीम एक कॉर्पोरेट्स के लिए को क्रिएशन में काम करती है। PN गाडगिल के लिए भी हमारे क्लाइंट है। तो इन सब के लिए हम लोग जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कैरेट लेन को मॉडर्न ज्वेलरी चाहिए 22 कैरेट में, तो हम उस डिज़ाइनर उस पर काम करते हैं। PN गाडगिल को लाइफस्टाइल ज्वेलरी के लिए कुछ मॉडर्न ज्वेलरी चाहिए तो उसके लिए काम करते हैं। तो वी कम अप विद डिफरेंट डिज़ाइन फॉर दिस कॉर्पोरेट। उनको हम डिज़ाइन बताते हैं, उसका एक मास्टर मॉडल पीस बनाते हैं 3D प्रिंटर से। ओके, उसका कैड होता है, उसका 3D प्रिंट होता है। उसके बाद उसको हम सिंगल पीस गोल्ड में क्रिएट करते हैं और उससे हम लोग मल्टीपल पीसेस ऑर्डर लेते हैं कस्टमर्स का। और देन वी गेट द मल्टीपल ऑर्डर एंड देन वी स्टार्ट द ऑर्डर इन द प्लांट। गोल्ड के पहले का एक प्रोसेस होता है जो वैक्स और डाइज का होता है और 3D प्रिंटर्स का होता है, और उसके बाद गोल्ड का प्रोसेस होता है। एंड देन वी डिस्पैच द प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर्स एंड देन दे पुट देयर प्रोडक्ट्स इन ऑल द स्टोर, जितने भी 400 उनके 300 स्टोर्स है, और उसके बाद उसका रिपीट ऑर्डर्स भी आता है। तो सर, टू पुट इन नटशेल, आप बुलियन 24 कैरेट गोल्ड लेते हो लाइसेंस्ड इंपोर्टर से, फिर आप उसको सेफली रखते हो, तब तक आप अपनी डिज़ाइनिंग करते हो, उस कैटलॉग को कॉर्पोरेट्स को भेजते हो एंड कॉर्पोरेट्स प्लेस दैट ऑर्डर विद यू। नहीं, आप देखेंगे तो पहले डिज़ाइंस बनती है, एवरी मंथ डिज़ाइन आती है, उसके मास्टर मॉडल्स बनते हैं, उसको हम कॉर्पोरेट्स को दिखाते हैं। दे कम टू आवर फैसिलिटी ऑल्सो, वी सेंड बाय लॉजिस्टिक ऑल्सो, वी टेक अ पार्ट इन द एग्जीबिशन 3-4 टाइम्स इन अ ईयर, वी डिस्प्ले देयर ऑल्सो। और ऑर्डर्स के बेसिस पे हम गोल्ड प्रिक्योर करते हैं। तो जितना ऑर्डर आया, अगर मुझे 20 किलो का ऑर्डर है, 2000 पीसेस का ऑर्डर है, वी विल बाय 20 kg बुलियंस फ्रॉम द बैंक। ऑर्डर आने के बाद हम बुलियन प्रिक्योर करते हैं और फिर उसको प्लांट में उसको प्रोसेस के लिए डाल देते हैं। तो उसका जो कैरेटेज होता है 18 कैरेट या 22 कैरेट, उसके हिसाब से उसमें एलॉय मिक्स होती है। उसके बाद उसका जो भी 12 से 15 स्टेशन से होके निकल के फाइनल प्रोडक्ट्स बनता है, तो उसको 20 से 25 दिन हमको लगते हैं। तो सर, आप सेम कैटलॉग बहुत सारी कंपनीज को भेज रहे होगे क्योंकि आप बहुत सारे कंपनीज को सप्लाई करते हो,
तो डिजाइनिंग ओवरलैप नहीं होता इसमें? सो वी हैव अ पॉलिसी कि हम जो 2000 डिज़ाइन बनाते हैं सभी के लिए, किसी के लिए 300 डिज़ाइन बनाया, किसी के लिए 150, किसी के लिए 200 डिज़ाइन, वी मेक सेपरेट डिज़ाइन फॉर सेपरेट कंपनीज। और उनके जो भी ऑर्डर्स आते हैं उस डिज़ाइन को हम जैसे ही उनके सिलेक्शंस होते हैं वो डिज़ाइन उनके लिए लॉक कर देते हैं। तो वी यूज़ द प्राइवेसी मॉडल और वी गिव डिज़ाइन राइट्स टू द कंज्यूमर। वी डोंट गिव द सेम डिज़ाइन टू द डिफरेंट कस्टमर। वी हैव अ पॉलिसी इन द कंपनी कि हम सारे डिज़ाइन लॉक करते हैं कंज्यूमर्स के लिए। सो वी डोंट ओवरलैप। हमारे अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, अलग अलग डिज़ाइनर टीम के साथ, और इस जो एक कस्टमर के लिए डिज़ाइन है वो उनको नहीं हम प्रोवाइड कर सकते। सो सर ये जो कॉर्पोरेट्स हैं ये इनके बहुत सारे वेंडर्स होते होंगे ना जिनसे ये लेते होंगे। इट्स नॉट लाइक यू आर द ओनली वन सप्लाइंग योर डिज़ाइंस टू देम। तो इनका स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसे होता है? सो अगेन ये ऐसा नहीं है कि एक ही मैन्युफैक्चर पे लिए डिपेंड करेंगे। हमारा वॉलेट शेयर इनमें 5-6%, 7-8% होता है। दूसरे भी मैन्युफैक्चर जो हमारे से बड़े उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, हमारे से छोटे मैन्युफैक्चर है उनका कम होता है। सो दे डिपेंड ऑन 10 to 15 बिग मैन्युफैक्चर एंड स्कैटर्ड 30 से 40, 30, 40, 50 छोटे भी मैन्युफैक्चर होते हैं। बट अगेन लार्ज मैन्युफैक्चर्स के बाद डिज़ाइन ज़्यादा होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उनके वॉलेट शेयर धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के कम होते हैं बिकॉज दे आर लोअर डिजाइन, लोअर सब कुछ है। तो दे डिपेंड ऑन ऑल लार्ज कॉर्पोरेट, लार्ज मैन्युफैक्चरर, स्मॉल, बट लार्ज मैन्युफैक्चरर को वो वॉलेट शेयर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे बिकॉज दे आर कमिंग अप विद न्यू डिजाइन विच आर सेलिंग इन द सेल्फ्स एंड उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी है। सर दीज आर बिग ज्वेलरी हाउसेज राइट? तो व्हाट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम बैकवर्ड इंटीग्रेटिंग? ये ऐसे फैक्ट्री क्यों नहीं सेटअप कर सकते? सो अगेन आप देखेंगे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने 15 साल पहले लार्ज कॉर्पोरेट्स का एक इन हाउस पूरा मैन्युफैक्चरिंग था, उसने पूरा 80% आउटसोर्स कर दिया बिकॉज जब उन्होंने देखा कि हम 15 साल पहले जो भी स्टोर खोल रहे हैं उसमें स्टोर में सेल्स डिक्लाइन आ रहा है या ग्रो नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक रिसर्च टीम रखी और उनको पता चला कि हमारे फैक्ट्री से टिपिकल एक ही टाइप का प्रोडक्ट्स आ रहा है। तो इंडिया में कंज्यूमर्स लाइक साउथ इंडियन, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती डिफरेंट है, सबका डिफरेंट टेस्ट है। जो मुझे पसंद है वो साउथ इंडियन को पसंद नहीं है, या किसी और को पसंद नहीं है, किसी और को पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। तो उनका ये मानना है कि वी आर ब्रिंगिंग इन 25 to 50 माइंड इन इट। स्काई गोल्ड इज ए माइंड जो 18-20 साल से एक वर्टिकल पे बहुत सारे डिजाइन लेके आ रहा है। तो हम अगर डिफरेंट मैन्युफैक्चर से आउटसोर्स करके अगर प्रोडक्ट लाएंगे, एक सेल्फ में अगर 1000 रिंग है, मेरी 150 रिंग है, मेरे कॉम्पिटिटर की 100 रिंग है, किसी की 200 रिंग है, एवरी कस्टमर इज कंप्लाइंग और एवरी कस्टमर इज हैप्पी और एवरी कस्टमर इज बाइंग। तो इतनी मोबाइल ज्वेलरी इज नॉट लाइक मोबाइल और टेलीविजन कि आप 15-20 मॉडल के साथ आए और 1-1.5 साल चलेगा। एवरी मंथ वी हैव टू कम विद न्यूमरस, इट्स अबाउट न्यूमरस डिजाइनिंग इन ज्वेलरी। तो इतना सारा डिजाइनिंग, इतना सारा वर्टिकल इन हाउस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई दे डिपेंड ऑन आउटसोर्सिंग, बिकॉज आउटसोर्सिंग में उनको एवरी मंथ न्यू क्रिएशंस मिल रहे हैं। और वी एज ए मैन्युफैक्चरर वी आर अहेड ऑफ द मार्केट। हम 6 months बाद क्या चलने वाला है उसको रीड करते हैं, 2 साल बाद कहाँ पे ट्रेंड जाने वाला है, 13 से 18 साल की जनरेशन क्या पहनेगी, 18 से 25 साल की जनरेशन क्या पहनेगी, और 25 से 45 ईयर्स की क्या पहनेगी। तो वी रीड द मार्केट एंड मेक द डिजाइन एज पर। दैट्स व्हाई दे मोस्टली डिपेंड ऑन आउटसोर्सिंग। तो सर डिज़ाइनिंग तो एक एस्पेक्ट हो गया, क्या कॉस्ट भी एक एस्पेक्ट रहता है कि जिस कॉस्ट पे आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो मे बी वो उस कॉस्ट पे ना प्रोड्यूस कर पाए? सो अगेन मैं कॉस्ट की ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा क्योंकि 100% कॉस्ट तो थोड़ा बहुत फर्क उनको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। बट अगेन दे आर डिपेंडेंट ऑन द डिज़ाइनिंग, क्योंकि स्टोर्स में डिज़ाइन क्या बिक रहा है और प्रोडक्ट्स क्या बिक रहा है। तो उस प्रोडक्ट तक आने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि और बना भी देंगे तो बहुत सारी वेरिएशन नहीं बना सकते, सब कैटेगरी वो कैटर नहीं कर पाते। तो इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट, इट अबाउट द सेलिंग ऑफ द डिज़ाइन एंड द क्रिएशंस वी मेक। तो उनको जो क्रिएशन और डिज़ाइन चाहिए वो आउटसोर्सिंग से ही उनको मिल सकता है। सर गोल्ड इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्री, डेली चेंज होता है गोल्ड का प्राइस। आप किसी प्राइस पे बुलियन ले रहे हो, कल्याण जिस टाइम प्लेस कर रहा है ऑर्डर, कल्याण या कोई भी और कॉर्पोरेट जिस टाइम पे प्लेस कर रहा है ऑर्डर तब कोई और प्राइस होगा, और जब तक आप फाइनली इन्वेंट्री डिस्पैच करते हो तब कोई और प्राइस होगा। तो हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क ऑफ प्राइस वॉलेटिलिटी? सो अगेन आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में जब ऑर्डर होता है प्रोडक्ट, उसके ऊपर रेट फिक्स नहीं होता है गोल्ड का, खाली ऑर्डर बुक होता है। किसी कॉर्पोरेट ने मुझे 20 किलो का ऑर्डर दिया, 2000 पीसेस है, तो उस टाइम पे रेट फिक्स नहीं होता है। जब डिस्पैच होता है तब रेट फिक्स होता है। तो जब मैं बुलियन परचेज करता हूँ मैं उसको MCX में सेल करता हूँ, उसको हेज कर लेता हूँ, क्योंकि 25 से 30 दिन मुझे इन्वेंट्री बनाने में लगता है। तो जब मेरी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है और डिस्पैच के लिए रेडी है ट्रांच, उस दिन रेट फिक्स होता है कस्टमर के साथ, उस दिन मैं MCX में वापस उसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। तो एवरी सेल एंड परचेज इज हेज्ड ऑन द MCX प्लेटफॉर्म विच इज अवेलेबल इन इंडिया
दैट्स व्हाई वी हैज आवर इन्वेंटरी टाइम एंड ऑन. तो उसमें रिस्क अपना रेट का कोई रिस्क नहीं रहता है, और कस्टमर अपना रेट फिक्स करता है, डिस्पैच करते हैं. तो एज अ कंपनी आपको ना गोल्ड के बढ़ने से फर्क पड़ता है ना गोल्ड के कम होने से पड़ता है, Yeah. क्योंकि आप तो हेज ही कर रहे हो अल्टीमेटली. Yeah, we hedge everything, so gold prices will not have an impact, you know. तो सर मेकिंग चार्जेस इज द ओनली रेवेन्यू सोर्स फॉर योर कंपनी, राइट? Yeah, 100% making charges is our revenue. So these big corporates, when I go to their showroom, they charge me 25% making charges. What is the percentage that they give to you? So we charge them from 5, 6%, 7%, 8%, and again in studded more than that. So 18 karat 7-8% we charge them. So वो ये ज्वेलरी का 25% चार्ज करते हैं, because they have a brand, they have expense of brand, they have made their brand, they infuse so much money to make the brand. और डे इन डे आउट उनके जो रूटीन एक्सपेंसेस है, जैसे उनके एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है कि स्टोर में ज़्यादा रखने पड़ते हैं उनको, उनके रेंटल एक्सपेंसेस एंड अगेन नॉर्मल अदर एक्सपेंसेस है ऑल्सो इंक्लूडेड. तो उनकी ब्रांड के बहुत सारे एक्सपेंसेस है, दैट्स व्हाई दे हैव टू चार्ज 25%. तो फिर जाके उनके ग्रॉस मार्जिन्स क्रिएट होते हैं, एंड दे एनकैश देयर ब्रांड ऑल्सो. Stop. Before you invest another rupee, ask yourself one simple question. When was the last time you heard the real story behind your investments? We are Green Portfolio, an asset management company managing around 1,000 plus crores. We are a team of 40 plus professionals, including CAs and CFAs. Aside from tracking companies, we are inside the room with the management and on factory visits asking very tough questions. With Green Sharks, what we bring you is the direct conversation with the management of listed companies. We are building not just another channel, but a community where we are giving you a chance to ask your questions indirectly to the management of listed companies. You can join the community with the link given in the description below. We are your research team, getting you in the room of the companies you want to invest in. So welcome to Green Sharks, an investor's edge in stock research. Okay, sir, ये इंडस्ट्री प्राइस सेंसिटिविटी के साथ वर्किंग कैपिटल सेंसिटिव भी है, आपका भी वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहा है. सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दैट? सो अगेन वर्किंग साइकिल आप देखेंगे, वी आर चर्निंग 6 टाइम, 60 डेज का हमारा साइकिल है. तो वी आर मूविंग टुवर्ड न्यू बिजनेस ऑफ एडवांस गोल्ड. हम नए कस्टमर्स ऐड करें जो हमको गोल्ड एडवांस दे, तो हमको उसमें इन्वेंट्री फंड नहीं करनी पड़ेगी और डेटर्स फंड नहीं करना पड़ेगा. तो उससे हमारा डेटर्स डे और भी स्ट्रीमलाइन होगा. तो वी विल कम बैक टू 45-50 डेज साइकिल फ्रॉम दैट. तो एडवांस गोल्ड का जो बिजनेस है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, उसी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं. सर, ये एडवांस लोन काम कैसे करता है? So advanced gold business is like when the company gives us an order of 20 kg or 10 kg, 10 kg का order से he will give us 10 kg bullion to us, Okay. and we'll make that and manufacture for them and we'll dispatch them. तो उसमें हमारा जो making charges का है उसका ही billing होता है. We don't bill for the entire gold. Okay. So we don't have to fund that 10 kg to make 10 kg. I don't have to buy from the bank. They will provide us the gold and we'll make them and dispatch them. So I have to use the same facilities. The employees, we have to increase the employees and use the same facility, and designer team is there. So additional हमको inventory का या और दूसरा cost नहीं है. तो सर ये जो एडवांस गोल्ड वाला पार्ट है, ये कितना परसेंटेज है अभी आपका? So right now it is 3 to 4%. We are going to be at 7.5% this year. Okay. और next year हमारा 10% टारगेट है उससे. सर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल, आपने जब जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपको वर्किंग कैपिटल नीड्स भी और बढ़ती जाएंगी, तो फिर कैसे आपका रिड्यूस होगा वर्किंग कैपिटल? सो मैंने बताया जैसे एडवांस गोल्ड का बिजनेस हम बढ़ा रहे हैं, आगे जाके 2030 तक हम 30% लेके जाएंगे उसको, तो उससे भी हमारा हेल्प होगा. ऑलरेडी हमारे इंटरनल अक्रूल्स जो हमारे प्रॉफिट्स आएंगे एवरी ईयर के, उससे हम फंड करेंगे हमारी इन्वेंट्रीज बनाने के लिए. और अगेन डेट इज अ पार्ट वी आर हैविंग ऑलरेडी. तो हमारे पास 2027 तक का कैपिटल अवेलेबल है. तो सर, डेट पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है उसको कम करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्ड मेटल लोन, राइट? GML. तो ये कैसे काम करता है? या गुड क्वेश्चन. तो हम लोग ऑलरेडी CC यूज़ कर रहे हैं जो 9.5% चार्ज करता है हमको. तो हमने अभी गोल्ड मेटल लोन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. ये 3 क्वार्टर में हम गोल्ड मेटल लोन को 70-80% लेके जाएंगे. तो उससे हमारा कॉस्ट बचेगा. तो हमारा अभी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है 1.2% ऑन द सेल्स है, जो 0.6 या 0.7 हो जाएगा. तो इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव अवर पैड बाय 0.4 बेसिस. तो अगेन इन ये 3 से 4 क्वार्टर लगेंगे, बट वी विल मूव टू गोल्ड मेटल लोन 80% ऑफ अवर एक्सपोजर ऑफ डेट. ओके. नहीं सर, बट गोल्ड मेटल लोन होता क्या है एक्चुअली? So yeah, again, gold metal loan is a gold bank give us on the lease basis. So they charge yearly 3% for that against 9% of the CC.
तो वो हमको लीज पे देते हैं एंड देन व्हेन वी रीपे दैट वी हैव टू कट द रेट एंड पे द, तो हमको लीज पे गोल्ड देते हैं ताकि हम मैन्युफैक्चर कर सके इसके, और उसका रेंट, उसका जो चार्ज होता है इंटरेस्ट चार्ज, वो 3% ईयरली होता है, इट्स वेरी लो। सो वो गोल्ड प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ कैश। ओके सर, अगर मैं आपके रेवेन्यू की बात करूं, कुछ नंबर्स की अगर हम बात करें, आपका रेवेन्यू तो डबल हुआ है बट एट द सेम टाइम आपका ट्रेड रिसीवेबल 3x हो गया है। अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं, कॉर्पोरेट्स का तो मंथली क्रेडिट साइकिल चलता है, तो ये इतना रिसीवेबल में इंक्रीज कैसे है? सो अगेन रिसीवेबल्स हैव इंक्रीज बाय लास्ट क्वार्टर में 40 to 40 डेज, ऑन एन एवरेज हमारा 30 डेज का होता है। तो ऑल कॉर्पोरेट्स हैव अ साइकिल ऑफ 45 डेज, 40 डेज और 30 डेज, और समबडी हैव 20 डेज और समथिंग, तो ऑन एन एवरेज हमारा 30 डेज का एवरेज साइकिल आता है। तो अगेन लास्ट क्वार्टर में हमारा थोड़ा शूट अप हुआ था बिकॉज वी पुश्ड अप द सेल फॉर द मार्च टारगेट एंड Akshaya Tritiya was lined up on 30th of April. Everybody was that they will take the delivery on first week of April, we'll push the delivery in March end. So that's why data were shot up, but बाद में वो normalize हो जाता है on the running quarters में. Okay. Yeah. तो आपका टारगेट क्या है for the trade receivable and debtor days? So again आप देखेंगे वी आर टारगेटिंग के ट्रेड रिसीवेबल 3-4 क्वार्टर में 15 दिन पे आ जाए तो हमारा साइकिल 45 डेज का हो जाएगा। ये कैसे आएगा, मतलब अगेन हम लोग नया जो भी बिजनेस ले रहे हैं वो कैश एंड कैरी बिजनेस ही ले रहे हैं। नया जो भी वेंडर कस्टमर ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो कैश एंड कैरी टर्म्स पे कर रहे हैं, और जो भी कस्टमर एडवांस गोल्ड दे रहे हैं उसको ही हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो ये जो कैश एंड कैरी और एडवांस गोल्ड का बिजनेस आएगा तो ब्लेंडेडली हमारा डेटर्स डे कम होगा एंड हमारे साइकिल जो 60 डेज का है वो 45 डेज होगा। सर अभी आप 3500 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो, बट अभी आपने एक फर्म एक्वायर की है, गाना एंड गोल्ड लिमिटेड, जो आपसे काफ़ी छोटी है। वाज दिस अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड व्हाट इज योर विजन फॉर द कंपनी? श्योर, अगेन ये कंपनी आप देखेंगे पूरा एडवांस गोल्ड बिजनेस पे काम करती है। जो हम बात करें एडवांस गोल्ड का जो पावर है, इस कंपनी में पूरा इटालियन टाइप कड़ास एंड बैंगल्स बनते हैं जो इंडिया में 2 ही कंपनी बनाती है, एंड वेरी रेयर प्रोडक्ट्स, वेरी फाइनेस्ट प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट्स हम इतना पावरफुल है कि इसको अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करवाना है, वी हैव टर्म्स के इसको एडवांस गोल्ड में ही आपको करना पड़ेगा, वी विल नॉट फंड द इन्वेंटरी। तो अगेन मेनी आवर एक्सपोर्ट कस्टमर एंड domestic large corporates have also seen that product and they have assured us giving a 50 kg or 100 kg per month advance call for this company. तो ये बहुत हाई एक्रेटिव बिजनेस, ROC एक्रेटिव बिजनेस है, और हम देखेंगे 2-3 साल में इससे हम 70-80 करोड़ का पैट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स विल बी ह्यूज बेनिफिट फॉर द कंपनी ऑन द, ये कंपनी का एबिटा और ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएगा बिकॉज लेबर जॉब पे कंपनी काम करती है एडवांस गोल्ड में, तो इसमें खाली मेकिंग चार्जेस का ही बिल बनता है। तो दैट विल एड अप टू द पेरेंट कंपनी। जब कंसोलिडेट होगा तो अपना एबिटा और ग्रॉस मार्जिन विल इम्प्रूव वेरी गुड। तो सर अभी हम पहले गोल्ड मेटल लोन की बात कर रहे थे, अगर आप मेरे को बता सकते हो गोल्ड मेटल लोन और ट्रेडिशनली अगर मैं बैंक से लोन लूँ कितना इंटरेस्ट कॉस्ट का हमें डिफरेंस पड़ता है? तो अगेन सीसी लिमिट्स आप कैश में लेते हैं तो 9-9.5% ईयरली पड़ता है, गोल्ड मेटल लोन 3-3.5% ईयरली पड़ता है। अगेन 0.5% और कॉस्ट पड़ता है बिकॉज गोल्ड मेटल लोन जब बैंक से लेते हैं, बैंक इज लिटिल बिट कॉस्टलियर देन मार्केट फॉर बुलियन परचेज, तो वो नेट आपको 4% ईयरली आता है, तो इट्स अ डिफरेंस ऑफ 5% ईयरली। So we have a community at Green Portfolio where we drop the form के किसी को क्वेश्चन पूछना प्रमोटर को तो वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो 2 कंसर्न्स थे, एक तो आपका कि CFO नेगेटिव क्यों है और एक प्रमोटर ऑफलोड क्यों कर रहा है अपना स्टेक। तो आई वुड लाइक टू टच अपॉन द ऑफलोडिंग स्टेक लेटर, बट आप CFO पॉजिटिविटी के बारे में श्योर। तो आप यू कैन सी वी आर ए वेरी हाइपर ग्रोथ कंपनी, हम लोग हाइपर ग्रोथ फेज में है। कंपनी इज ग्रोइंग एट 40-50% ग्रोथ रेट। तो जब कंपनी ग्रोथ पे फेस में होती है तो ही नीड्स द कैपिटल टू इनफ्यूज फ्रॉम द इंटरनल एक्रेस और डेट और समथिंग। तो आप देखेंगे 2026 में तो हम लोग कैश फ्लो नेगेटिव रहेंगे, बट 27 में हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे जैसे ही हमारा टर्नओवर 7,600 करोड़ पहुंच जाएगा और पैट विल रिसीव बाय 4.2 और 4.3%। तो विल बी कैश फ्लो पॉजिटिव एट आफ्टर 27 मार्च। तो ये एक साल हम नेगेटिव रहेंगे बिकॉज विल नीड द कैपिटल, जो इंटरनल एक्रेस के जो भी आएंगे उसके लिए। तो 2 साल के बाद 2027 मार्च के बाद हम लोग कैश फ्लो पॉजिटिव। तो रीजन बिहाइंड नेगेटिव टिल from last 2 years or 2026 because we are in a growth phase, we are growing 2x in 2 years. Okay. तो growth के लिए हमेशा you need a capital. तो next 2 years 2027 मार्च के बाद हम लोग कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे। Okay. सर अभी आई वुड लाइक टू टच अपॉन द एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक, अभी आपकी क्या परसेंटेज है दोनों में? So exports is our 8-9% yearly and we are expecting to go up to 20-25% in coming 2 years. Okay. और डोमेस्टिक से हमारा 90% है, तो डोमेस्टिक वी विल बी एट 80% मिनिमम। तो इंडिया इज़ अ ह्यूज लार्ज मार्केट, कैपेबल मार्केट, तो हम लोग 80% इंडिया से हमेशा आई रख रहे हैं कि बिजनेस वहीं से आए, और 20-25% एक्सपोर्ट से आए। तो सर एक्सपोर्ट्स में क्या प्लान्स है? विच कंट्रीज आर यू प्लानिंग? So we are exporting to Dubai, UAE,
यूएई टोटल एंड सिंगापुर एंड मलेशिया। तो हमारे कस्टमर्स को, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो एशियन कस्टमर्स को ज़्यादा सूट करते हैं। तो अगेन यू कैन सी सिंगापुर और मलेशिया के कोई स्टोर में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है तो श्रीलंकन विल बाय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वहाँ पे जो भी एशियन कंट्रीज़ के ट्रैवलर्स है, टूरिस्ट है या जो रहने वाले, वही बाय करके लेके जाते हैं। तो आवर प्रोडक्ट टोटली सूट्स फॉर द एशियन कस्टमर्स। तो हम सिंगापुर, मलेशिया और यूएई को ज़्यादा देख रहे हैं, वहीं पे हमारा एक्सपोर्ट है। हमारा प्रोडक्ट्स इट डजंट सूट टू यूएस और यूरोप प्रोडक्ट बिकॉज अब तक वो प्रोडक्ट्स हमने बनाए नहीं है। तो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन दिस कंट्री। वी आर अगेन 15 दिन में हम लोग एक सब्सिडरी ओपन कर रहे हैं दुबई में टू सर्व बेटर टू द यूएई एंड सिंगापुर एंड मलेशिया, बिकॉज दुबई में अगर हमारा ऑफिस होगा तो विल बी ग्राउंडेडली सपोर्टिंग टू ऑल द कस्टमर, और हमारा जो गोल्ड रेट्स का रेट्स होगा वो भी कॉम्पिटिटिव होगा वहाँ पे। सर, जब हम मिडिल ईस्ट या दुबई की बात करते हैं तो एक जनरल परसेप्शन है कि दुबई में तो ऑलरेडी इतना गोल्ड है, तो अगर मैं किसी को बताऊं कि इंडिया से जा रहा है वो गोल्ड, तो इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम। क्या उनके पास प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इंडिया से ले रहे हैं? सो कॉस्ट इज़ अ वेरी मेजर इफेक्ट बिकॉज दुबई में जो फैक्ट्रीज है उसका कॉस्ट बहुत हाई है। यहाँ पे जो कारीगर्स को हम 35,000 पे करते हैं, दुबई की फैक्ट्री उसको 1,20,000 पे करती है, बिकॉज वहाँ के सारे नॉर्म्स है, एम्प्लॉय नॉर्म्स है, बहुत सारे फैसिलिटीज उनको देना पड़ता है, स्टे और ये सब। तो इंडिया कॉस्ट में हमेशा आगे रहता है विद द क्वालिटी। तो दुबई में आप नहीं सोचेंगे नहीं कि दुबई इज अबाउट 30-40% एक्सपोर्ट्स इंडिया से जाता है। तो दुबई की मैन्युफैक्चरिंग 10-15% इतना ही है, और इंडिया से 30-40% प्रोडक्ट इंडिया से जाता है बिकॉज इंडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड अबाउट द क्वालिटी एंड डिजाइनिंग। सो अगेन इंडिया इज अ गुड एक्सपोर्टर टू दुबई। ओके, तो सर जब आप एक्सपोर्ट करते हो कोई टैक्सेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता? सो एक्सपोर्ट्स में दुबई हैज़ देयर ओन टैक्स 9% जो वहाँ के सब्सिडी में हमको पे करना है। India has their own tax, so we get export gold duty free because government provides us the gold for export. They do not lie duty on that. We have to export that gold only. We cannot use for domestic purpose. तो वो gold को हमको export ही करना है, so we get export duty free gold from the government or Bank of India, or sorry, whichever bank is there, and we export it to the Dubai country. So there is no hurdle in exporting. Okay. Sir, you have been working in this industry for 3 decades now, ठीक है? अभी प्राडा का एक फैशन शो हुआ था जिसमें उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल को रिप्रेजेंट किया था, which was like 1.6 lakhs। आपने अभी बोला यूएस और यूरोप इतनी एविडेंट मार्केट नहीं है अभी हमारे के लिए, बट डू यू सी someday in the future collaborating with Tiffany or Cartier? Yeah, 100%. अभी this is the level that we are trying to establish our 1 ton capacity को 100% यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो इंडियन मार्केट्स और यूएई और सिंगापुर से ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। जब 2 साल और निकल जाएंगे 2027 के बाद, वी विल बी एट 1 ton per month प्रोड्यूसिंग, देन वी कैन सी अबाउट यूरोप एंड यूएस मार्केट और इन सब ब्रांड के साथ को क्रिएशन कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर फोकसिंग टू अचीव अवर टारगेट इन इंडिया, सिंगापुर एंड मलेशिया एंड ऑल। सो अगेन वी ऑल्सो सो दैट द कोल्हापुरी चप्पल एंड अगेन ब्रांड्स आर वेरी गुड फेमस इन यूरोप एंड यूएस। सर, अगर मैं आपकी थोड़े बैलेंस शीट के नंबर्स की बात करूँ, पिछले 2-3 साल पहले आपकी एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी कुछ सिक्योरिटीज़ में, आपने लोन भी ले रखा था, बट उन सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलैटरल भी रख रखा था। दैट वाज अ वेरी गुड मूव क्योंकि वो शेयर्स भी बढ़ गए थे एंड यू कुड पे अ लोअर इंटरेस्ट रेट, राइट? तो सर, ऐसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हम आगे सोच रहे हैं या नहीं? ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स थी, एचडीएफसी बैंक के शेयर, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर, टीसीएस के शेयर, वी यूज्ड टू गिव टू द बैंक एज ए कोलैटरल। बिफोर लिस्टिंग वी स्टार्टेड दिस, बट जैसे ही हम लोग मेन बोर्ड में आए, वी स्टार्टेड लिक्विडेटिंग दैट बिकॉज एज ए कंपनी वी डोंट वांट टू कीप सच सिक्योरिटीज इन द बैलेंस शीट। तो पहले हमारे पास कोलैटरल में we don't have anything, so we buy it and give them, but we already liquidated 70-80% of them, और एक 10-15% कुछ एक बैंक में हमारा प्लेज पड़ा है, it will also release and we liquidate। तो ऐसा आगे फ्यूचर में कोई भी हमारा सच्ची नहीं कि हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करें, तो we are now giving FDs to the as a collateral to the bank। Okay, so you are expanding rapidly। अभी आपने स्पार्कलिंग चेन एंड स्टार मंगलसूत्र प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किए हैं, 2 सब्सिडीज, उनके नंबर्स कैसे हैं, क्या प्लान्स हैं? So again we acquired him last 8 months back or something, or we done a turnover of 450 crore each in this March, and again targeting for 600 crore this year। तो वो दोनों भी अच्छा expand कर रही है, and we Sky Gold, our parent company, it has a good pace and it's growing automatically now in auto phase। Now we want to grow stars and sparkling also like that, so we will also like that 2-3 years में वो भी 2000 या 3000 crore के turnover में आए। तो our major focus is right now on the base subsidiary also, and Sky Gold again we have a management to move this। तो सर, जो ये दोनों सब्सिडरीज हैं, ये ज़्यादा यंगर ऑडियंस को केटर करने के लिए आपने स्टार्ट किया, राइट? 18 कैरेट 100% हमारी ये 18 कैरेट और 22 कैरेट दोनों है, बट हमारा आप देखेंगे इन्वेंट्री ज़्यादा लाइट वेट है, और ये
यंगर जनरेशन को भी अट्रैक्ट करता है और एज वाले जो 35, 45, 50 ईयर्स के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि हम खाली यंगर जनरेशन के लिए बनाते हैं, पर हमारा ज्वेलरी ज़्यादा मॉडर्नाइज है। इट्स नॉट लाइक देसी टाइप एंड ऑल, तो हम मॉडर्नाइज ज्वेलरी ज़्यादा बनाते हैं, तो जो सूट करता है एवरी वुमेंस को। हम 13 ईयर्स से 18 ईयर्स के जनरेशन के लिए स्पेशल ज्वेलरी बनाते हैं, 18 से 25, 25 टू 45 एंड अगेन ऑल दिस जनरेशन। तो ये दोनों सब्सिडरी में भी हम स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इसमें नए नए वर्टिकल्स लेके आ रहे हैं। इसको हम ग्रोथ में और भी ग्रो करना चाहते हैं और आगे ग्रो करके इसको भी स्काई गोल्ड की तरफ बढ़ाएंगे। तो सर ये पूरी आपकी डिज़ाइनिंग कितनी देर में चेंज होती है, क्योंकि ट्रेंड्स तो डेली चेंज होते हैं? सो एज आई सेड वी कम अप विद 2000 डिज़ाइन पर मंथ। तो पहले ऐसा था कि यू कैन, अगर आपने 1000 डिज़ाइन बनाए तो साल भर तक आपको डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ेगा, 5-6 साल 8 साल पहले की बात है। बट नाउ डेज डिज़ाइनर शिफ्टिंग एंड कॉर्पोरेट रिटेलर वांट देयर सेल्फ टू चेंज एवरी 2-3 मंथ्स। तो इंडिया इज अबाउट वेरी ओकेजन ऑफ, जब जुलाई के बाद आप देखेंगे तो गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, नवरात्रि, दिवाली, marriage season, then Father's Day, Mother's Day, all the days they are made to sell their jewelry. So 12 months there is 12 occasions, and you have to be prepared with the designs for every occasion. So you have to come up with new design every month and give them options to explore. सो सर अभी आपकी मेन कॉस्ट मटेरियल के अलावा ऑब्वियसली एम्प्लॉय कॉस्ट है। आपकी ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन में बहुत कम फर्क है, 1% कहूँगी मैं एम्प्लॉय कॉस्ट। तो जैसे जैसे आप रेवेन्यू ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे, अपना 70-100 टारगेट की तरफ बढ़ोगे, डू यू सी दिस कॉस्ट इंक्रीजिंग? सो अगेन आप देखेंगे हमारा टोटल कॉस्ट 1.5% का है, एम्प्लॉय कॉस्ट 0.91% है, 0.5% अदर कॉस्ट है। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ेगा, अदर कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ेगा, बट अगेन फिक्स कॉस्ट में जैसे रेंटल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब थोड़ा डाइल्यूट होगा। तो 0.10 बेसिस का हमको बेनिफिट हो सकता है जब हम एक्सपांड करेंगे। तो सर जब मैं आपकी फैक्ट्री विजिट करी थी तो आपके प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया था पहले आप कुछ मैनुअली प्रोड्यूस करते थे, अब नाउ यू हैव शिफ्टेड टू हाई टेक मशीन्स। तो ये मशीन्स वगैरह कहाँ से सोर्स करते हैं? सो अगेन ये दिस मशीन है फ्रॉम इटाली एंड जर्मनी मेजरली एंड यूएस से। हमने पॉलिशिंग मशीन यूएसए की डिप्लॉय की है, और अगेन 3D प्रिंटर्स ऑफ जर्मनी एंड इटाली वी हैव डिप्लॉयड। तो आप देखें मैनुअली का उनका मतलब है कि हम वैक्स इंजेक्टर्स जो आते थे उससे करते थे, अब टोटल प्रोडक्ट्स 3D प्रिंटर से होते हैं, जिसमें हम 20-30% वेट को हमने कंट्रोल कर लिया है। मतलब और भी वेट, जैसे गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं तो हमने 20-30% अपना गोल्ड रेट वेट सब में कम किया, उसका स्ट्रेंथ लेंथ भी वैसा है, उसका फील भी वैसा है, और हमने वेट भी कम कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटर्स वाली हमको हेल्प करिए कि आप वेट भी कम कर सकते हो, उसका फील भी कम नहीं हो। तो एम्प्लॉय कॉस्ट और भी आगे कम हो सकती है? सो अगेन एम्प्लॉय कॉस्ट जितना आप देखेंगे, अगर मुझे 1100 एम्प्लॉय लग रहे हैं 3500 करोड़ के लिए, 7000 करोड़ के लिए मुझे 2000 नहीं लगेंगे, मुझे 1800-1700 लगेंगे। यू कैन सेव अप टू 10%, 20% समथिंग, बट यू कैन नॉट से दैट इट विल बी वेरी ड्रास्टिकली लोअर। बट हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत सारी एंटर हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एंटर होगी 100% एम्प्लॉय कॉस्ट बचेगा हमारा। सो यू आर कमिंग अप विद न्यू फैसिलिटी, आप उस फैसिलिटी के बारे में बताएंगे जिसमें आपका टारगेट है 4 टन्स अ मंथ के साथ? या श्योर, वी हैव अ विजन कि इंडिया का जो 600 टन ज्वेलरी बनता है, या 600 या 700 टन, उसमें से हम 4-5% स्टेक पे हो। 4 टन पर मंथ बनाने की हमारी मतलब टारगेट है। बना रहे हो? अभी हम लोग 0.5 टन पर मंथ बना रहे हैं, 2027 तक 1 टन बनाएंगे। तो ये फैसिलिटी हम 2028 में रेडी करेंगे। वी हैव प्लान्स फॉर देम इन फ्यूचर प्लान्स, और उसमें जाके हम 2031-32 तक 4 टन पर मंथ का टारगेट रखते हैं। तो एक विजन हमने रखा है, एज एन विल बी प्रोग्रेस वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दैट। तो आपका उतना विजन है, ऑर्डर इनफ्लो आप उतना देख रहे हो कि आप 4 टन पर? या वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में, 9 लाख करोड़ का अनऑर्गेनाइज मार्केट है, ऑर्गेनाइज मार्केट 5 लाख करोड़ का है। तो ये अनऑर्गेनाइज मार्केट शिफ्ट हो रहा है 5 साल में, बहुत ड्रास्टिकली 5 साल में। तो वी आर ऑन द सेम बोट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, वी विल आल्सो गेन द शेयर्स ऑफ दैट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग, उसी से हम लोग ये सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सर जब जैसे जैसे आप अनऑर्गेनाइज मार्केट में मूव करोगे, ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज मार्केट की तो पेमेंट टर्म्स ऑर्गेनाइज से भी बहुत ज़्यादा खराब होती है। No, you are mistaken. We are not moving to unorganized market. I am saying that unorganized market is shifting to organized. And then you are trying to tap. So we are with organized player. So we'll get the sale from there. क्योंकि ये business shift होगा organized की तरफ। Okay. सर आप वैल्यू चेन में बहुत नीचे आते हो, आपकी मोड क्या है? लाइक व्हाई कांट समवन स्टार्ट अ बिजनेस लाइक दिस? So again, it's not about कि आपने मशीनरीज डिप्लॉय कर दी, आपने फंड्स डिप्लॉय कर दिए। इट्स अ जर्नी ऑफ 20 years ऑफ आवर प्रमोटर्स। तो स्टार्टिंग में हमने जो डिज़ाइन बनाई, कुछ चली कुछ नहीं चली, तो हमने धीरे धीरे इससे लर्न करके मार्केट को रीड किया है
कि एक स्टेट में 40 स्टोर है उसमें क्या चलता है, एक 50 स्टोर है उसमें क्या चलता है, अगर आंध्रा में 40 स्टोर में क्या चलेगा, यूपी के 10 स्टोर में क्या चलेगा, दिल्ली के 20 स्टोर में क्या चलेगा कस्टमर के। तो ये 20 साल का एक्सपीरियंस है, हमने मर्चेंडाइजिंग टीम डेवलप की है, डिज़ाइनर टीम, हमारे पास डिज़ाइनर 15 ओल्ड डिज़ाइनर्स है। ये टीम क्रिएट करने के लिए आपको एक टाइम लगता है, आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, डिज़ाइनर टीम, मार्केटिंग, यू रीड द मार्केट, आगे के 6 महीने बाद यंगस्टर क्या बाय करने वाला है, 2 साल के बाद क्या बाय करने वाला है, एंड यू कम अप विद द डिज़ाइन। So it's not like a newcomer will come up. There are so many entry barriers about designing, designer team. Again, inventory is 1 crore rupees per lakh. German, Italian technology you should have. So many entry barriers are there to enter in this market. तो सर जब मैंने कम्युनिटी या फॉर्म की बात की थी, मैंने बोला था पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम विद यू ऑफलोडिंग योर स्टेक, वुड यू लाइक टू एड्रेस दैट? या श्योर, आई विल हाईलाइट इट। तो हम आप देखेंगे हमने 2005 से बिजनेस शुरू किया था, इट्स लाइक 2025. In 20 years journey, promoter has never sold their shares or taken any money other than salary. So 20 साल आप देखेंगे, इसके पहले हमने 2 बार कंपनी में फंड रेज किया, कंपनी को ग्रो किया, कंपनी को एक पेस पे एक लेवल पे लाया, उसके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े, उसके बाद हमने शेयर किया। तो आप देखें वी आर 3 promoters, 3 brothers, so we equally sold 4.97%, is about approximately 1.6% each। और हमने कुछ वारंट्स लिए थे 18 months बैक जो 1.4% है, जो हमने ऑलरेडी वारंट्स एक्सरसाइज कर लिए, तो हमारा वापस से 1.4% स्टेक वापस आ गया है, प्लस हो गया। तो इस नेट आप देखेंगे हमने 3.6 ही अपलोड किया है, तो 1.2 बिटवीन 3 promoters, एज वी आर 3 brothers, इट दैट्स व्हाई वी सोल्ड 1.2, इट्स अ वेरी नॉमिनल स्टेक परसेंटेज। तो अगेन सम म्यूचुअल फंड्स वांटेड टू एंटर एंड वी अपलोडेड द शेयर। सो ओके, सो दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई Yeah, यू yeah. ऑफलोडेड द स्टेक। सर अभी हम अगर आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें, अभी कैसी होगी और कैसे वेरी करती है थ्रू आउट द सो ईयर? वी आर एट 50% यूटिलाइजेशन, एंड 2 साल में हम लोग 100% यूटिलाइजेशन में चले जाएंगे। और पूरे साल में कैसे वेरी करती है? वेडिंग सीजन में अलग होगी और Again, manufacturer are order backed anytime. There are, I told earlier also, there are 12 season going on. So when there is wedding season, we are back with the wedding orders. When the Diwali order, Akshay Tritiya is back by Akshay Tritiya order. And again, new small occasion and big occasion and days and all. So mostly you can see Akshay Tritiya is the major season, Diwali is the second major season, and marriage season is the third major season. So all this come under different quarters. सर आप अपनी लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में, आप लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड्स अभी आप किस में ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं? तो अगेन नेचुरल डायमंड्स तो हमारा प्रायोरिटी है। नेचुरल डायमंड्स हम लोग जस्ट 1.5 year बैक स्टार्ट किया, दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी मच एंड वी आर गेनिंग द सेल्स। लैब ग्रोन एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हम बना रहे हैं, बिकॉज उसका मार्केट 2-3 साल आप देखें मार्केट में बस था, अब सेल्स होना शुरू हुआ है थोड़ा। तो वी हैव स्टार्टेड विद जस्ट स्मॉल क्वांटिटी विद 1 कस्टमर। सो यू कैन से वी आर इन अ नेट प्रैक्टिस ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, बिकॉज उनके डिज़ाइंस हम बनाते जा रहे हैं, ताकि कोई 1 साल के बाद कोई बड़ा प्लेयर अगर आता है तो वी विल बी रेडी विद द डिज़ाइनर्स। तो सर लैब ग्रोन डायमंड इन जनरल ज़्यादा मार्जिन है इसमें गोल्ड से ज़्यादा, सो हाउ विल यू इंश्योर द ग्रोथ इन दिस सेगमेंट विदाउट कैनिबलाइजिंग योर गोल्ड बिजनेस? सो अगेन गोल्ड इज अवर मेन बिजनेस, एंड हम लोग, हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा बन गया। लास्ट वी हैव अ गुड रिलेशन ऑफ कस्टमर विद 10-15 years, सो वी कैन एंटर विद natural diamond jewelry with them, we can enter with lab grown also with them without happening our gold, because this customer are with us with 12 years or 13 years, so they have a faith in us, they have a confidence with us about the timely delivery, quality of the products and all. So just we are entering with the first the natural diamond with the customer, again lab grown when it get the pace, we'll enter with them also. सर आई अंडरस्टैंड दैट अभी आपका डायमंड वाला जो सेगमेंट है इट्स वेरी स्मॉल, बट गोल्ड में क्या होता है? गोल्ड में तो आपका फिक्स्ड प्राइस है, आप किसी भी शॉप पे जाओ आपको पता है कि 22 कैरेट का इतना रेट है, 24 कैरेट का इतना रेट है, बट डायमंड में पीपल डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ओनली, तो इसका प्राइस कैसे डिटर्मिन होता है? सो अगेन ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वी डील इन हायर क्वालिटी ऑफ VVS EF, तो उसका प्राइस मार्केट में आप जाएंगे तो सबका डिफरेंट होता है, बिकॉज डायमंड्स के क्वालिटी सबके डिफरेंट होते हैं, तो रिटेलर सेल ऑन द डिफरेंट प्राइजेस, मैन्युफैक्चर के लिए प्राइजेस भी डिफाइंड होते हैं कि अगर VVS EF है तो इतना रेट्स हमको रिटेलर से मिलेगा, वी विल गेट द रेट्स, एंड अगेन डायमंड इज अ मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस। सर और सर आपने कभी सोचा नहीं सिल्वर में जाने का? क्योंकि अभी सिल्वर की डिमांड सिर्फ ज्वेलरी में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। अगेन सिल्वर इज अ वेरी डिफरेंट बॉल ऑफ गेम, सो डिफरेंट हाईवे यू कैन से, so we are not going to enter silver in I think 4 to 5 years next, because we have यहाँ पे इतना gold में we have scope, and again we are entered with
नेचुरल डायमंड जरी, लैब-ग्रोन डायमंड, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है. वी हैव टू grow the subsidiaries also. So much work we have already. So silver is a different ball of game. We will not like to. तो सर इनके वैसे इन जनरल क्वेश्चन, गोल्ड और सिल्वर की फैब्रिकेशन में फ़र्क होता है, प्रोसेसिंग फैसिलिटी सब कुछ? Yeah, 100% totally different. Some machineries are same, but again process is very different from gold. Silver का प्रोसेस पूरा डिफरेंट है, गोल्ड इज अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम. सर अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, एवरीवन इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन एनी वे दे कैन, चाहे वो ETF हो, बॉन्ड्स हो या ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो. अगर मैं आपको एक स्टैट्स बताऊं, अभी ज्वेलरी मार्केट 70% है इंडिया की एंड 30% सिर्फ इन्वेस्टमेंट मार्केट है. इन्वेस्टमेंट मार्केट इज ग्रोइंग बाय 170% ईयर ऑन ईयर, जबकि ये ज्वेलरी मार्केट इज स्लम्पिंग बाय 25%. सो ये आपको इम्पैक्ट करेगा इन फ्यूचर? नहीं, आप देखेंगे अगर ज्वेलरी मार्केट में जो ज्वेलरी लेडीज़ जो ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट भी है और उनके लिए एक प्राइड है पहनना, उसको वेयर करना, और सेफेस्ट हेवन है लेडी के लिए. तो आप जब बुलियन परचेस करते हो वो जल्दी से लिक्विडेट भी हो जाता है अगर प्राइजेस अप गए या कुछ भी आपको जरूरत पड़े. ज्वेलरी ऐसी चीज़ है, इट्स टू नियर टू योर हार्ट, और इससे इमोशन जुड़े हुए. यू विल नॉट ईजिली सेल दैट इन अ मार्केट whenever you are, if you are not in a urgent need. तो ज्वेलरी एक अपना प्लेस रखता है, बिकॉज अगर आप फैमिली को देखें तो वो ज्वेलरी इसके लिए बाय करते हैं कि वो जल्दी से लिक्विडेट नहीं हो सकती, उसके साथ इमोशन जुड़े हुए. तो यू विल नॉट बाय अगेन इफ देयर इज एनी अर्जेंट रीजन. अगेन बुलियन यू कैन से यू कैन लिक्विडेट इन 6 months 3 months एंड इट गेट्स सोल्ड. सो ज्वेलरी का अपना प्लेस है, वो अपने पेस में ग्रो कर रहा है. बुलियन इज अगेन ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट और मैनी थिंग, बट ज्वेलरी में you get the variety to wear, you get so much of creations and all. So jewelry एक favorable choice है लेडी के लिए या यंग गर्ल के लिए, आजकल बॉयज़ के लिए भी, and men's also liking the jewelry and all. सर लोगों का एक परसेप्शन है that gold is a perpetual appreciating asset. It's not true, right? Why? So 100% gold is a appreciating asset, and you can see last 5-6 years में तो gold ने triple appreciation दिया है. So lady who bought for 1 lakh rupees jewelry, he is getting 3 lakh rupees after deducting his making charges. तो ये एक फेथ लेवल बढ़ा रहा है कस्टमर का कि अगर 3 times रिटर्न्स मिल रहा है और मैंने उस ज्वेलरी को पहना भी, उसने उसे वेयर भी किया, तो इससे बड़ा कोई एसेट नहीं है. आप कोई भी ब्रांड का अगर एक शू भी लेंगे 50,000 का, उसका आपको 500 रुपीज़ भी बाई बैक नहीं आएगा. तो ज्वेलरी एक ऐसा ऑप्शन है. एक ब्रांड के बाद आप जब एक्सपेंडिचर की बात आती है तो आप कितना ब्रांड पे एक्सपेंड कर सकते हो, 1 लाख 2 लाख, उसके बाद जो भी ऑप्शन है वो ज्वेलरी है. बिकॉज इट कम अप विद द इन्वेस्टमेंट. सो यंगस्टर ऑल्सो आजकल ये समझ रहे हैं कि हम ब्रांड्स पे कितना एक्सपेंस करेंगे, उसके बाद जो भी पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए गोल्ड में होना चाहिए, एटलीस्ट मेरे पास वो एज ए इन्वेस्टमेंट है. तो सर मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गई, जो आपकी नई फैसिलिटी आ रही है उसमें जो भी आपकी सब्सिडरीज हैं या जो आपने गार्डन गोल्ड लिमिटेड एक्वायर किया है, उन सबको कंसोलिडेट करके एक जगह प्रोड्यूस करोगे सारा सामान? या हम लोग का प्लान है कि जितनी भी हमारी सब्सिडरीज पेरेंट कंपनी सबको 2028 में हम एक जगह पर लेके स्टैंड अलोन एक लार्जेस्ट बिल्डिंग बना रहे हैं जो इंडिया की स्टैंड अलोन नंबर 1 होगी, उसमें सारा कंसोलिडेट करेंगे हम लोग. ओके सर, आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू. एक बार अगर मेरे को सिर्फ जिस्ट दे देंगे कि आपका रेवेन्यू क्या टारगेट है, एबिटा मार्जिन्स के क्या टारगेट है और पैट के क्या टारगेट है इन 2-3 years? So again we have given a guidance till 2027 in the PPT. So 5,400 crore we are expecting this year, 7,600 crore in the next year, and EBITDA of around about 5.67% to 6%, and PAT about 3.8% to 4.1 or 2% or 4.5% approximately. सर आप बिगेस्ट चैलेंज क्या देखते हैं इसको इस इंडस्ट्री में? सो अगेन जब तक आपका प्रोडक्ट्स पावरफुल है, आपकी प्रोडक्ट्स पे पकड़ अच्छी है और आप प्रोडक्ट्स नए नए लेके आ रहे हैं, नए वर्टिकल्स लेके आ रहे हैं, योर प्रोडक्ट्स इज प्लेस परफेक्ट फॉर द कंज्यूमर. यू आर सी कंज्यूमर, आपके कंज्यूमर के स्टोर्स के हिसाब से आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आप स्टेट के हिसाब से प्रोडक्ट व्हेन यू आर इन द प्रोडक्ट्स और आपके डिज़ाइनर्स परफेक्ट आ रहे हैं डिज़ाइन, यू नेवर हैव अ रिस्क. सर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ये तो आपने नंबर्स 2-3 साल के दिए, बट व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म विजन फॉर द कंपनी? So again, we want to be at 4.5 ton per month and 27,000 turnover in some 2031 or 32. We will come up with the plan in coming years. When will we reach the target? How will we reaching it? How the funds will be from internal accruals and all. So we'll come up with the plan. But we have a vision to be at 4.5 ton per month. Sir, do you ever plan to, or do you ever see yourself launching a retail brand? So right now we are comfortable in a manufacturer. There is a huge scope in manufacture. So we'll grow like a manufacturer only. We don't have any plan for retail. Okay. Thank you for joining us today. Thank you. Thank you.